नमस्कार, करनाल फास्ट फूड पर आपका स्वागत है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं उचानी बागवानी केंद्र है, जहां पर आज इजराइल के वैज्ञानिकों ने दौरा किया। इजराइल के वैज्ञानिक और इंडिया के वैज्ञानिक मिलकर मधुमक्खी पालन के लिए कार्य करेंगे। देखें तस्वीरें, इसमें इजराइल से आए वैज्ञानिकों ने क्या कहा। आज जो कार्यक्रम हैं, बाहर से आए हैं, क्या संदेश लेकर के आए हैं और क्या कहना चाहेंगे एट दिस टाइम? What is the program and what you want to say? Well, welcome everybody. I'm happy to be here on behalf of Mashav, the State of Israel, and the Embassy of Israel in India. We are very happy to open today 3 days training in which 30 participants from 11 states will have the possibilities to study and learn practices which are used in India, but we have a special guest today, an Israeli expert that will showcase how in Israel we are, let's say, facing a lot of issues in beekeeping area. And we are coming here to show how we are trying to overcome and rectify the issues that we have with beekeeping, apiculture. And those sharing knowledge is the most important component in our activity. We are sharing knowledge. Local scientists are taking the ideas and trying to adapt it to the local conditions, to the local situation for the benefit of the farmers of India. So we hope that those 3 days will be a fruitful one. And as I mentioned again, it's our pleasure to be here and to see how strengths are the connection between India and Israel. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Israel. सर, विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है, विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में किस तरह से का यहाँ पर जो असर है वो किस तरीके का पड़ता है? थोड़ा रखना है ना। What is the similarity of India and Actually, there is no similarity in beekeeping practices between India and Israel. It's totally different, and the markets are different. But we are facing the same issues of diseases and viruses that are causing a lot of damage to the population of the bee. Bees in India, beside bees in India and worldwide, are very important, as you know, not for the honey. The honey is a byproduct because they are pollinators. Without pollination, there is no fruit and vegetables. And this is why it's so important that the bees population healthy will be in the top of our mind, because without bees there will be starvation worldwide. So we are here to share knowledge how we will keep our bee population happy and healthy and strong. And that's what we are doing here, and that's the similarity that we face in Israel. And you know, worldwide there is a phenomena of colony collapse of bees, and this is some issues that we have to overcome, and we will try to do it together with the local scientists and with the Israeli experts and scientists. And this is why we brought Mr. Siti, Moran Siti. He's a beekeeper by himself, but he is also a scientist. And today, in the coming 2 days, we will be happy to learn from his experience and wisdom. Sir, at this time, first chance India? What is From Mr. City as a beekeeping expert is the first time. It's the first time. I will let him to speak by himself. sir, इधर थोड़ा सा। What did you? My name is Moran Siti, beekeeper and a bee expert from Israel. Mashav
very happy to be here and share the knowledge. Make, I think, problems of bees around the world are really similar and common, and it's very important to keep the bee healthy. Hope something will be very interesting for the people over here to see what we are doing in Israel. Hope they can see and learn and maybe train like that as well. Those practices, by the way, practices of keeping the bee healthy, and what we are really doing practically in Israel, we don't know if you are doing it in India. We are going to demonstrate it tomorrow. So you are most welcome to visit us and to see what he's going to show tomorrow. And I hope that in the coming days or month, you will be able to try to implement also it here. And it will, for sure, will help the beekeepers everywhere. What is your name? What is your name? My name is Uri Rubinstein. क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि बागवानी विभाग द्वारा ये 3 दिवसीय इंडो इजराइल ट्रेनिंग बीकीपिंग मैनेजमेंट पर की जा रही है। इसमें जो हमारे इंडिया से जो लोकल एक्सपर्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो भी अपनी जानकारी साझा करेंगे पार्टिसिपेंट को। और जैसा कि बताया गया है कि टोटल 11 स्टेट से 30 पार्टिसिपेंट यहाँ हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रेनिंग में। और जो इजराइल से भी हमारे बी कीपिंग एक्सपर्ट आए हैं, ये हमारे यहाँ पे जो बीज के में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ इजराइल में जो बेस्ट प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको वो यहाँ डेमोस्ट्रेट करेंगे या प्रैक्टिकली यहाँ जानकारी देंगे। तो इस जो ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत इजराइल में जो भी हमारे टेक्नोलॉजी हैं, वो टेक्नोलॉजी जो गैप है उसमें उसको पूरा किया जाए और जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट किया जाए। फार्मर्स भी बुलाया गया है तो खाली एक्सपर्ट्स हैं? अभी जो ट्रेनीज हैं ये फार्मर की जो अपैरी है उस पर विजिट करेंगे और फार्मर वहाँ कुछ फार्मर बीकीपर होंगे जो उनको वहाँ मौके पर उनके प्रैक्टिकली जानकारी दी जाएगी। आम फार्मर को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा जो बीकीपर हैं? आम फार्मर जो यहाँ पे जितने भी स्टेट के अधिकारी आए हैं वो यहाँ जो तकनीकी जानकारी लेंगे, उसके जो अपने स्टेट में जाके लोगों और फार्मर को बी कीपिंग में भी इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट है जहाँ अलग से है? जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में एक ही बी कीपिंग इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है जो रामनगर कुरुक्षेत्रा में है। पूरे इंडिया में एक ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और इसी सेंटर के माध्यम से ये ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज की जा रही है। सर, भारत की और इजराइल की भूमि को एक समांतर के रूप में तापमान के उसमें बताया जाता है, क्या इस तरीके की जो भूमि है वो पूरी तरीके से? हाँ, जैसा कि हमारा भारत और इजराइल में जो वहाँ तापमान है, भूमि का जो पानी की प्रॉब्लम है, वो हमारे यहाँ वहाँ काफ़ी समानता है। लेकिन जो चीज़ वहाँ टेक्नोलॉजी है हम वहाँ उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी लोकल क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारे सूट करते हैं वो चीज़ें यहाँ अडॉप्ट करते हैं। और उसी के अंतर्गत यहाँ पे हमारे हरियाणा में 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसको फ्रूट पे, वेजिटेबल पे और जो हमारा बी कीपिंग, इन 3 और एक फ्लोरिकल्चर पे हमारा जज्जर में शुरू हो रहा है। तो ये हमारा 4 जो मेन मुख्य फसलें हैं जिनके ऊपर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए गए। क्या संदेश देना चाहूँगा? आज का जो ट्रेनिंग है ये मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे बहुत अलग अलग विभिन्न राज्यों से जो पार्टिसिपेंट आए हैं, अधिकारी आए हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। और जो भी एक्सपर्ट आया है इजराइल से, वो अपनी जानकारी साझा करेंगे, तो उसका फ़ायदा हमारे बी कीपर जो इंडिया में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं डॉक्टर बिल्लू यादव, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो उचानी है यहाँ पे इंचार्ज जॉइंट डायरेक्टर हूँ। 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर रामनगर करनाल की तरफ से जो है इजराइल एम्बेसी एवं मसाव के सहयोग से आयोजित किया गया है। और ये जो हमारे महानिदेशक उद्यान, मिशन निदेशक उद्यान
और हमारे जो HOD स्पेशल है उनकी मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से ये संभव हो पाया है कि भी ये जो है सारा कार्यक्रम ट्रेनिंग का आयोजित किया गया है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसा कि मेरे से पूर्व अधिकारी महोदय ने बताया था कि ये जो 30 हैं तो अब बढ़ के इनकी संख्या 34 हो गई है और ये 15 स्टेट से जो है ना थ्रू आउट इंडिया यहाँ हमारे अधिकारीगण आए हैं। और ये सारी जो टेक्नोलॉजी हमारे बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर रामनगर से वहाँ भी सीखेंगे, वहाँ प्रत्यक्ष में उनको देखें भी गए और जो थोड़ा बहुत कोई गैप भी है तो हमारे जो इजराइल के बी एक्सपर्ट जो आए हैं मिस्टर सीटी, वो उस गैप को पूरा करेंगे और जो यहाँ के वातावरण के अनुरूप जो टेक्नोलॉजी होगी वो वहाँ जाकर के अपने स्टेट में अपने किसानों के लिए लागू करवाएंगे। आपकी जानकारी के लिए एक और बताना चाहता हूँ कि हरियाणा स्टेट जो एक ऐसा राज्य है जिसमें पहला बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर जो साइंटिफिक बी कीपिंग के लिए स्थापित किया गया है रामनगर में, ये 2017 में नवंबर में जी। और इसमें जो है हर तरह की टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है और साथ में किसानों को हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ बी कीपिंग के लिए जो बी हाइव्स और बी कॉलोनीज हैं उनके ऊपर 90% अनुदान है और जो बी इक्विपमेंट्स जितने भी हैं सारे उनके ऊपर 75% अनुदान किसानों को उपलब्ध है। सर एक बार अपना परिचय। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, DDO IBDC रामनगर क्षेत्र। थैंक यू।